test on one day. India, England, Australia. For a lucky big three-side slayer. What a player. What a player. What a player. Discussing zinger bells and white Ulster hills. Baggy greens for long from New South Wales. Is the RPL heaven or hell? Will the 100 fail or do quite well? What a player! What a player! What a player! ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या कैसे कब तो आपको पता है, क्यों हुआ, ये जानने के लिए हम जुड़े हैं. दिस इज व्हाट अ प्लेयर कंकशन सब. मेरे साथ हैं सुमन ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, showing off his India support, India jersey. We are here to discuss obviously what's happened. India is already out of the tournament. The semi-finals are yet to be played. But yeah, we will, as true Indian fans, try and be objective, try and dissect in our limited knowledge of cricket and see why this happened and what we can learn to go and maybe, win the World Cup next time around. Suman, kaise hain aap? How are we doing? बहुत ही बढ़िया. भारत से आज का ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, सो एक खुशी की बात है कि होमलैंड में है. और डिसअपॉइंटमेंट है, इंडिया पाकिस्तान के साथ फाइनल नहीं खेल पाएगा. बट व्हाट इट इज व्हाट इट इज. सारे सोशल मीडिया पे, सारे न्यूज़ चैनल पे, सब जगह है व्हाट इज अ सेंटिमेंट. बट ह्यूज लर्निंग. हम लोग ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि अगला वर्ल्ड कप दूर नहीं है, ये लर्निंग विल गो अ लॉन्ग वे. India will come back strong, and look, nobody's perfect, so yeah, fans are disappointed, but it sucks to be not part of the knockout. But now let's just enjoy the cricket and support the team. सबसे बड़ी सीख तो ये मैंने ली कि मैं यार बहुत पहले जैसे ही शेड्यूल आ गया था, सेमीफाइनल वगैरह, मैंने छुट्टी डाल दिया था. मैं नेक्स्ट टाइम से एक करने ही वाला हूँ, चाहे वीकडे पे हो, कभी भी हो, मैं छुट्टी नहीं लूंगा. शायद उसी वजह से टीम हारी है. बट जोक्स अपार्ट, टू बी ऑनेस्ट, everyone thought, looking at the draw, that India were no-brainer. They will go through as long as they won one out of the two matches. And in the end, it felt like it became like a triangular tournament. वो दो matches upfront थे, fatigue, bubble fatigue, IPL के बाद. I mean, what went wrong? Is there anything to pinpoint? Because both games we were never in it. So ऐसा भी नहीं कि कुछ close game हुआ, एकदम one-sided और बहुत बुरी तरह हारे. So, any thoughts on those two games? Anything we could have done differently, you think? देखिए, काफी सारे conspiracy theories हैं कि why India didn't make it to semi-finals, but it all boils down to that Bumrah press conference, right? He got a lot of slack when he was up front and open, that the fatigue definitely played a factor. Right after IPL, they did not get much time. They have been in the bio bubble or secure bubble since 6 months. So Bumrah को देखा गया तो we all thought that he's making an excuse. Then the following day आपने देखा है तो विराट कोहली ने भी ये बताया था कि players are definitely worked up. ऐसा नहीं है कि country को represent नहीं कर पा रहे हैं, but it's just the nature of the schedule which we have. Then if you look back, भरत अरुण जो bowling coach हैं, उन्होंने भी काफी clearly बताया. And when you start hearing these things from the support staff, not players, that they are fatigued, I think there is value towards it. And अगर हम लोग को भी देखा गया, if we don't get one day off and अगर 3-4 महीने back to back हम लोग काम कर रहे हैं day to day, our performance does get impacted, whether we are speaking externally, whether we are speaking internally. अगर अंदर का presentation दे रहे हो या नहीं तो कोई बड़ा press conference कर रहे हो, if you don't have break, you are going to burn out. So, and आज रवि शास्त्री ने clearly बताया भी था कि मजाक में उन्होंने बोल दिया था कि I'm mentally strained because of my age, but if you look at boys, they are also strained mentally. So, I think it played a factor. But having said that, अगर bubble fatigue निकाल दिया गया, what lot of times due to
fans being so passionate are not seeing is it's not that India lost the games. Other teams were better prepared. If you look at Pakistan, we had no positive in that game, right? Absolutely no positive. Pakistan had a near perfect game. How do you get around that? If you then look at New Zealand, they were prepared with two spinners, Santner and Sodi. I guarantee you हम लोग ने सोडी को ज़्यादा मैचअप्स में नहीं देखा रहेगा. हम लोगों ने बोल्ट को देखा रहेगा या नहीं तो या केन विलियमसन का preparation. So we got caught off guard unfortunately, and some of the batters played well, but yeah, it just was not enough. And आज का especially आज के game के बाद और थोड़ा hurt feel हो रहा है because if you look at it, Namibia could score 130 plus. Whereas आप देखा गया तो न्यूजीलैंड के साथ हम 111 ऑल आउट हो गए. बिल्कुल, ये वर्ल्ड कप है. सबको याद ये होना चाहिए कि वर्ल्ड कप पिछले साल होने वाला था. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इतना सारा बबल खेल के एंड यू नो एवरीवन न्यू दैट वी वर कमिंग इनटू दिस. और पहले दिन तो मैंने भी जब ये सुना तो मैं भी एज एनी फैन में भी कि मतलब क्यों एक्सक्यूज दे रहे हो, लाइक ऑन द डे यू लूज यू डू नॉट गिव दैट एक्सक्यूज. मतलब मन नहीं सुनना है मुझे. बट देन रिफ्लेक्टिंग बैक, अब गुस्सा सब ठंडा हो गया, अब तो क्या हार ही गए हैं तो क्या है. तो रिफ्लेक्टिंग बैक डज मेक सेंस, स्पेशली जो फुल टाइम टेस्ट प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद इंग्लैंड, आईपीएल, फिर वापस इंग्लैंड में हम लोग गए, काफी सारा वहां टाइम स्पेंड किया, देन अगेन यू नो बबल. तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता ही होगा. तो मे बी यू नो देयर इज अ लेसन टू बी लर्नड. दूसरी चीज जो मुझे सबसे ऑनेस्ट, जो मुझे आई थिंक Virat Kohli ne in the whole World Cup say, you know, after the New Zealand game, they said we were not brave enough, and I think that probably was the crux of the problem. Like I had no issues, 110 आप बनाए, अब 15 ओवर में ऑल आउट हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो मुझे ऐसा लगा कि सब हिचकिचा रहे थे, यार मैं मारूंगा, मैं आउट हो जाऊंगा, मैं मारूंगा, आउट हो जाऊंगा. 20 ओवर का गेम है और खेलते खेलते हम 110 बनाए. तो वही एक चीज आई थिंक वी कुड हैव डन डिफरेंटली. एंड एज यू मेंशन एकदम आउटप्ले कर दिया. मतलब यार न्यूजीलैंड वो सुपर प्रिपेयर्ड, पाकिस्तान तो मतलब जो इतने सालों का जो पूरा हिसाब था पूरा निकाल लिया. इतने सारे उसके मीम बनने लगे, लोग टी शर्ट पे 152 फॉर नो लॉस लिख के बनाने लगे. तो दिस ब्रेव थिंग, हाउ मच do you read into that, Suman? Is it just one off on the day, you know, हाथ पैर हमारे फूल गए and that's where we lost it? It definitely is applicable for that particular game in New Zealand. अगर आप देखा गया आज का परफॉर्मेंस या स्कॉटलैंड के साथ परफॉर्मेंस देखा गया, fearless cricket, our opening partnership, third consecutive 50 opening partnership. So Shaheen Shah Afridi was unplayable, छोड़ दीजिए. but न्यूजीलैंड के साथ हम लोग बात भी कर रहे थे, we were live text commentating on our Facebook group की 1.4 overs हो गया है, क्या कर रहे हो आप लोग, start pressing up. You can't be starting to accelerate like 8th or 9th over in a T20 game. You will never be. And if you lose 4 wickets in a power play, you can't. So I think generalization unfair hai ki we were not brave enough throughout the tournament. New Zealand game definitely applicable, and part of it is also certain team selections. Probably if you're really critical, a couple of team selections probably could have been done differently. Or if you look back, Ashwin should have played all 5 games because he was economical. Shami, unfortunately, if you minus the Afghanistan game, he had a really bad World Cup. And Bumrah, we all expected him to run through the top order, but he couldn't get wickets. And Bhuvi ko first game diya tha Pakistan ke saath, he was okay. So team selection is also probably something they'll look back. But again, look, at the end of the day, it's easy for us to sit on a podcast and say that they should have done it. I mean, going there, playing in front of the crowd with that pressure, with bubble fatigue. Yeah, heart goes out to the team. Hopefully they come back and get some rest and ready for the New Zealand series. बिल्कुल. इसमें जो टीम सिलेक्शन की बात हम लोग ने उसका भी प्रीव्यू किया था. देयर वर अ कपल ऑफ पोटेंशियल क्वेश्चन मार्क्स ऑन द टीम सिलेक्शन, स्पेशली जो एक चहल का था. सबने कहा कि राहुल चहर को हम खिला रहे हैं बिकॉज वो हवा में तेज डालते हैं एंड ऑल दैट, बट बेचारे को 4 गेम तक एक भी गेम नहीं मिला. चक्रवर्ती आई थॉट वाज अ डिसेंट कॉल. रन ही नहीं पड़ेंगे तो मतलब क्या ही कोई कर लेगा. कितना भी कोई मिस्ट्री लेके आए, जब 110, 140, 50 अगर है तो कैसे कोई उसको डिफेंड करेगा. बट हाँ, आई मीन व्हाट्स डन इज डन. आई थिंक एक चीज हमको काफी वी नीड टू बी
माइंडफुल ऑफ कि कोई होलसेल चेंजेस की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैंने पाकिस्तान की मैच के बाद कहा था कि सब होलसेल चेंजेस करा दो, सबको खिला दो, इतना डिसअपॉइंटेड था मैं। बट बिकॉज 10-11 महीने बाद ही वर्ल्ड कप है, आई थिंक मेरे हिसाब से एक चीज की है कि ये जो बायलैटरल मैचेस होते हैं इसमें आप अपनी कोर टीम खिलाइए। बिकॉज प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल से आप चुन लेते हैं, आईपीएल में आपके टॉप 6 में जो है ये सब टॉप में ही खेल रहे हैं। तो ईशान किशन को आपने लिया, अच्छा मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलते क्योंकि ओपन में ज्यादा अच्छा वो कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या 7-8 नंबर पे आते हैं, कभी बॉलिंग करते हैं, नहीं करते हैं। रोहित शर्मा ओपन करते हैं, केएल राहुल अलग तरीके से खेलते हैं आईपीएल में। तो थोड़ा मुझे लगता है बायलैटरल सीरीज में रादर रेस्टिंग प्लेयर्स, थोड़ा वी हैव टू कीप गोइंग विद द कॉम्बिनेशन एंड देन रियलाइज कि हाँ ये अपना चलने वाला है, और बाकी तो आप आईपीएल में देखें उसको। लेकिन ये बायलैटरल सीरीज जो 15-20 गेम होंगे अब से अगले साल तक, उसको थोड़ा और शायद ध्यान से हम लोग को खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर आप टेम्पलेट की बात करते हो विच इंडिया इज नोन फॉर, इंग्लैंड का देखिए प्रदर्शन। इंग्लैंड के टॉप प्लेइंग 11 में 4 or 5 players got injured throughout the tournament. Ben Stokes did not play, Jofra Archer did not play, Jason Roy injured हो चुके हैं, so and then Tyler Mills injured during the tournament. But still they had roles for every single player and they had backups for every single player. अगर वही टेम्पलेट अगर आप इंडिया के टीम के ऊपर डालोगे, the middle order, for example हार्दिक पांड्या and शार्दुल ठाकुर के बीच में there was no matchup. Shardul Thakur was supposed to be a batting all-rounder. So was Hardik Pandya. Hardik Pandya was only batting and going away. So if you were trying to replace him, we went with reputations. That's another big learning we have, that we have to stop looking at reputations of players and start looking at performances and delivery of a player. And Varun Chakravarti का भी reputation लेके गए थे कि mystery spinner है. But he looked ultra nervous. अगर आप उसका बॉडी लैंग्वेज देखोगे, so he was just coming and dropping the ball on the pitch. Whereas आप IPL के मैचेस देखिए, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो you compare his bowling in World Cup versus you compare his bowling in a IPL game. His body language is completely different. He's trying variations there. Here he's just coming and dropping the ball on the pitch because understandably it's a World Cup game. He's nervous. So a lot of learnings, but again, no complaints from a commitment point of view. Intent को question मत करिए players के, because they all want to win. And हम लोग हमारे social media platforms में भी encourage कर रहे हैं public को कि the fans are disappointed, players will be equally disappointed. Some of them, for example, Surya Kumar Yadav, Ishan Kishan, इन लोग का first World Cup है. So imagine how big the occasion is for them, and why would they ever deliberately not play and win games for India? स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में एक आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, मतलब आप 50 साल 100 साल आप रहे नहीं रहे, आपको दुनिया याद रखेगी। 2007 में जो जोगिंदर शर्मा ने कर लिया, ये 100 साल बाद भी लोग याद रखेंगे। जोगिंदर शर्मा ने वर्ल्ड कप जितवाया था, मिसबाह उल हक ने भी उसमें हेल्प किया था। फिर ऐसे जो 2011 में किसी ने कर दिया, 83 में कर दिया, इट विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर। सो ऑब्वियसली प्लेयर्स कमिटमेंट इज नो डाउट। इसमें जैसे आपने शुरू में कहा कि दूसरी टीम भी है, खेलने आई है, वो घास काटने आई नहीं है। तो आप सबसे बड़े बोर्ड होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन सामने वाली टीम भी खेलने ही आई है। और ये स्पोर्ट है, तो कोई अच्छा खेलेगा, कोई बुरा खेलेगा, किसी का दिन होगा, किसी का नहीं होगा। दूसरे ग्रुप में हालांकि आई मस्ट से साउथ अफ्रीका, मुझे काफी दुख हुआ उनके लिए। 4 गेम वो जीते, सिर्फ रन रेट से थोड़ा बाहर रह गए, बट वो सरप्राइज ऑफ द लीग फेजेस थे मेरे लिए। मुझे एक और फैक्टर में आपको पूछना है, आपका ओपिनियन। सो काफी टॉस पे चर्चा किया जा रहा है कि टॉस वाज अनदर फैक्टर बिकॉज ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू मी 40 ओवर गेम में टॉस शुड नॉट बी गिवन मच ऑफ रेलेवेंस, नंबर 1, दैट इज माय ओपिनियन। बट आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। सेकेंड, अगर आप देखा गया ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, when they tour India for test series or one day series or T20, और अगर मोटेरा का ही पिच देख लीजिए जो 2 दिन में खत्म हुआ था, England never stood behind toss, right? England was not prepared clearly. And अगर Steve Waugh 2001 test series देखेंगे, Calcutta was dust bowl. He never stood behind toss and said, hey, if I would have won the toss, I would have won the series.
he gave due credit to Lakshmans, the Dravids, the Bhajis, the umpires for giving wrong decision. But क्या क्या आपको क्या लगता है, toss did that really play a factor in this World Cup? तो ये तो दो चीज इस पे, तो एक तो पहली बात जो आके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, इससे फैंस थोड़ा और उबल जाते हैं, जैसे कि हाँ यार फटीक था, अरे नहीं टॉस भी इम्पोर्टेंट था। आप सीधा बोलिए हम अच्छा नहीं खेले आज, हम इस वर्ल्ड कप में खराब खेले, वी आर सॉरी टू द फैंस बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट। मेरे को अगर कोई बोल दे कि विराट कोहली अरे मैं सॉरी हूँ, जैसे आरसीबी के लिए बोलते हैं अरे हम लोग इस साल नहीं जीत पाए, वी आर सॉरी, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। सबको पता है कि सब लोग सेम सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन में। टॉस ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बोल रहा कि टॉस नहीं इंपॉर्टेंट, बट दैट डजंट मीन कि आप उसमें 170 नहीं स्कोर कर सकते। वहां साउथ अफ्रीका जब उनको चाहिए था, उन लोगों ने 190 खड़ा किया उस पे एंड दे डिफेंडेड इट। वहां इंग्लैंड ने एक मैच में ऐसा किया, श्रीलंका ने कितनी अच्छी बल्लेबाजी की। तो कोशिश करेंगे तो आप बनेगा, आप पहले से ही सोच लेंगे कि मैं जितना बना उतना ही कम पड़े। और अगर आप टॉस हारे हैं तो आप ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, 15-20 रन का क्वेश्चन। आप तो यहाँ रुक रुक के डर डर के खेल रहे हैं, तो क्या ही मतलब, कोई टॉस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये अप्रोच की थोड़ी बात है, और थोड़ा ऑनेस्ट होके कि हाँ ठीक है, बाकी सब चीज सभी टीमों के लिए सेम है। अगर आप अच्छा नहीं खेले तो बोलिए अच्छा नहीं खेले, सभी देख रहे हैं अच्छा नहीं खेले आप, उसमें क्या है, गेम है, बाकी लोग भी खेलने ही आए हैं। तो थोड़ा अगर ऑनेस्टी थोड़ा दिखाएंगे तो आई थिंक फैंस विल बी मोर अप्रिशिएटिव कि हाँ हम हार गए, ठीक है यार, नेक्स्ट ईयर है वर्ल्ड कप, उसके बाद और एक वर्ल्ड कप है, यही कोर ग्रुप है, इनके पास 2 और चांसेस होगा। आई नो कि एटलीस्ट लाइक द मिनिमम भी एक्सपेक्ट इज कि हम लोग नॉकआउट्स में पहुंचे, बट ठीक है, अब नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, T20 का गेम है, टेस्ट मैचेस में तो हम अच्छा करते हैं, बट इट्स ओके। आई थिंक टॉस वाज अ फैक्टर, बट इट इज अ फैक्टर, इट विल बी अ फैक्टर। जब से डे नाइट क्रिकेट आई है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, कहीं भी आप जाएं टॉस फैक्टर होगा ही। यही 2016 में हुआ था वेस्ट इंडीज के साथ, हमने 190 बनाया जहां हमको 210 220 बनाना चाहिए था, फिर बॉल ड्यू आ गया, कोई बॉल ग्रिप नहीं कर पा रहे, एंड देन अगेन ड्यू वाज अ फैक्टर, बट क्या क्या करें अब। ठीक है, अभी गुस्सा हो ही है, टीम हार गया, बट माफ कर दीजिए प्लेयर्स को, और सपोर्ट करिए कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट। जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि आई थिंक एवरीबडी वांटेड टू विन, एंड आज के मैच के बाद तो आई थिंक दे डिजर्व द सपोर्ट, क्योंकि विराट कोहली भी कैप्टनसी ने गिव अप कर दिया है। काफ़ी फैंस को वो चाहिए था, राइट, इंक्लूडिंग आवर ग्रुप, लॉट ऑफ पीपल। एंड रवि शास्त्री का अगर आप रिकॉर्ड भी देखा गया तो वो भी है, और अगला एक सीरीज बनाने वाले हैं हम लोग, कोहली शास्त्री स्पेशल, वो डेफिनेटली देखिए। बट या इंडिया का कैंपेन अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। Kudos to the players for giving the support, and yeah, hopefully next World Cup we will go all the way through. हाँ, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो होगा वर्ल्ड कप, इंडिया विल परफॉर्म मच बेटर बिकॉज इंडिया में सब स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। ये बैटिंग परफॉर्मेंस जो है, ये स्लो पिचेस में ये जमा नहीं कुछ उनको, तो आई थिंक इट विल बी मच मोर एंटरटेनिंग, एंड वी गॉट गुड 10 months, तो अच्छा खासा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो ड्यू फैक्टर भी वहाँ कम ही होता है, तो होपफुली टॉस वोंट बी एज बिग अ फैक्टर, सो कम एक्सक्यूजेस होंगे, एंड यू नो होपफुली इट विल बी अ मच बेटर, इट कैन बी ओनली अ बेटर परफॉर्मेंस देन व्हाट वी हैव हैड दिस टाइम अराउंड, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। सुमन, thank you very much, and as you mentioned, we will do a special on Virat Kohli and Ravi Shastri's legacy, so if you are on our channel, please do try and catch up, and if you're here for the first time, please do check out for other cricketing contents you may like, or agar aapko hamara kaam pasand aaye to please do consider subscribing to our channel. Suman, thank you very much again, and I'll see you in some time. See you later. Thanks for watching.